Hello everyone and welcome to the session on Limited Liability Partnership Act 2008. This is very important legislation and it came into force on 31st March 2009 as per the definition of partnership, that is Limited Liability Partnership LLP. As per LLP Act is that a partnership formed and registered under the Act is known as LLP. Any LLP will have to be registered under the LLP Act. Nature of LLP, it is a hybrid kind of LLP. It has got the benefits of the Companies Act as well as the Partnership Act. It is governed by the LLP Act. Features of LLP. A very important point. This is very important point is that LLP is a body corporate having separate entity from its partners. This feature was not available for the partnership firms which were registered prior to Partnership Act, prior to LLP Act. And under Partnership Act this was not provided. Now LLP Act provides that LLP will be separate from its partners. वो कैसे होगा? कंपनी जैसा उनका अस्तित्व होगा. And it has a perpetual succession. मतलब ये है कि बिकॉज ऑफ और बाय रीजन ऑफ द पार्टनर्स the LLP will not have any issue. The working of LLP will continue. So it has a perpetual succession. Another feature is that partners are not personally liable for any wrongful acts of other partners. This is also important feature. ये कैसा important है? पहले क्या था? पहले ये पार्टनर अगर कुछ करता है, this partner, then this partner cannot be sitting like this. So he will have to pay for it. But now it is not. Now he is not worried about it if he does wrongful act. ये हो गया एक पर्सनली लायबल के बारे में. मीन्स अदर देन दैट ऑल्सो एक फीचर और ये है, अनदर फीचर है इसमें, दैट डेट्स ऑल्सो, लोन ऑल्सो, लाइबिलिटी ऑल्सो अगर होगी किसकी, LLP की, तो भी पार्टनर्स विल नॉट बी पर्सनली लाइबल. सो दीज आर दी फीचर्स ऑफ LLP. Then it needs to have two designated partners of whom one shall be resident in India. Two designated partners are important for the purpose of formation of LLP. It is the result of an agreement between the partners. Any LLP is the result of the agreement. LLP agreement की हम बात करेंगे, LLP agreement को समझेंगे. We will study the LLP agreement also. Because LLP agreement ये है, कॉन्स्टिट्यूशन है ये LLP का. ये है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जैसा कंपनी के लिए होता है, उसी तरह का ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है. इसमें जो पार्टनर्स जिस तरह से एक साथ आते हैं और एक उनका राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस एक म्यूचुअली तौर पे डिसाइड होता है, वो LLP एग्रीमेंट के ज़रिए ही होता है. बेनिफिट्स की अगर हम बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है LLP में. कुछ जो बेनिफिट्स कंपनीज के थे और कुछ बेनिफिट्स पार्टनरशिप के थे, उनको कंबाइन करके ये बेनिफिट्स दिखेंगे हमको. जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ LLP इज ईजी एंड सिंपल एज कंपेयर टू अ कंपनी में थोड़ा प्रोसीजरली वी नीड टू कंप्लाई विथ मोर एंड मोर पेपर डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेलिटीज़. LLP में उतना नहीं होगा. ये इसका बहुत अच्छा एडवांटेज है, बेनिफिट है.
ये मटेरियल बेनिफिट ये है दूसरा, और एक इम्पॉर्टेंट जो हमने अभी बात करी है, पार्टनर्स आर नॉट लायबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ अदर पार्टनर्स। रॉन्गफुल एक्ट्स, कोई फ्रॉड हुआ, कुछ भी हुआ, पार्टनर हैज डन, देन अदर पार्टनर्स आर नॉट, अनलेस दे आर इन्वॉल्व। अगर वो पार्टनर्स इन्वॉल्व होंगे तो ही, अदरवाइज वो पार्टनर्स लायबल नहीं होंगे। LLP इज नॉट अफेक्टेड बाय डेथ, इंसॉल्वेंसी और रिटायरमेंट। ये हमने देखा परपेचुअल सक्सेशन में। इट विल कंटिन्यू टू वर्क। द कंप्लायंसेस आर लिमिटेड टू फ्यू। कुछ रिटर्न्स फाइल करना है, एनुअल रिटर्न फाइल करना है, और कुछ चेंज ऑफ नेम या चेंज ऑफ कुछ अल्टरेशन है तो कुछ फॉर्म्स फाइल करना है। अदरवाइज फ्यू कंप्लायंसेस आर देयर। Joining or leaving the LLP is easy. It means investors है, या it means if partners who are going out with the capital, with their share or whatever is there, another partner can come with whatever sufficient investment, sufficient financial support and all this. So there are no restrictions upon joining or leaving the LLP. मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑडिट का कुछ हद तक नहीं है, द टर्नओवर एक्सीड्स द थ्रेशोल्ड लिमिट तब तक। LLP इज इजी टू वाइंड अप। इसकी जो प्रोसीजर है वो इजी है। डिसएडवांटेजेस की हम बात करें, कैनॉट रेज ECB लॉस, हेवी पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस, एग्जिट ऑप्शन इज डिफिकल्ट फॉर LLPs इन डिफॉल्ट। These are the disadvantages. डेजिग्नेटेड पार्टनर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है LLP में, बहुत इंपॉर्टेंस है इस चीज़ का। एनी LLP, जो भी LLP फॉर्म होती है, वो उसमें मिनिमम 2 लोग चाहिए। 2 पार्टनर्स आर नीडेड, 2 पर्सन्स आर नीडेड, 2 persons, I am referring to persons, okay, 2 persons minimum and maximum, there is no limit. Now out of 2, or if there are 10, there should be 2 designated partners. 2 designated partners are required. Now ये designated partners किस लिए रहेंगे? Why the designated partners are needed? They will see the legal and regulatory compliances. बहुत important task है इनका. They are the, like, they will also be seeing many things. Partners can be individuals or body corporates. If all partners are body corporates, they will nominate at least 2 individuals to act as designated partners. Incorporation of LLP, steps involved, procedure क्या है? LLP incorporation का procedure क्या है? ये important question है। जैसा एक क्वेश्चन था कि फीचर्स क्या है, दूसरा क्वेश्चन था कि बेनिफिट्स क्या है LLP के, क्यों LLP में जाना चाहिए, तो उसके बेनिफिट्स हमने बताया, एडवांटेजेस बताए, डिसएडवांटेजेस बताए। फीचर्स हमने बात करी कि कौन से उसके मेन जो फीचर्स है जिसके ज़रिए, जिसके लिए वो मतलब उसका एक इम्पोर्टेंस बढ़ गया है, वो क्या है। एंड देन इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP में प्रोसीजर क्या है, कैसे आप LLP बनाएंगे। तो LLP के लिए मिनिमम 2 पार्टनर्स आर नीडेड, मिनिमम 2 persons आर नीडेड, ओके। Now here are 2 people, okay, this is, so यहाँ पे अगर 50 का LLP बन रहा है तो एटलीस्ट 2 पार्टनर्स किस लिए लगेंगे? ये 2 पार्टनर्स है, they are there as designated partners, एटलीस्ट 2 designated partners। उनका डिजिटल सिग्नेचर होगा, then dean होगा। Now with this they will apply for name with the registrar after identifying, and for the purpose of availability वो अप्लाई करेंगे रजिस्ट्रार के पास। नेम अप्रूवल आने के बाद they will file, after receiving the name they will file फॉर्म फॉर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP, जिसे फिलिप यहाँ कहा गया है, फॉर्म फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP। ये फाइल होगा
रजिस्ट्रार के पास, एंड देन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विल बी इश्यूड। साथ ही फाइल होगा एलएलपी एग्रीमेंट। वो कैसे होगा, एलएलपी एग्रीमेंट के क्या क्लॉजेस होंगे, वो अभी हम बात करेंगे। अगर इस इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी की हम बात करते हैं तो उसका एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो 3 लोग एक साथ आए, 3 इंडिविजुअल्स हैव कम इन दिस एग्जांपल। इन दिस एग्जांपल 3 इंडिविजुअल्स हैव कम टुगेदर, और उन्होंने एबीसी फूड ऐसा डिसाइड किया, हम बनाएंगे एबीसी फूड्स एलएलपी। व्हाट दे डिड, ए एंड सी को उन्होंने डेजिग्नेटेड पार्टनर्स किया, ए एंड सी को उन्होंने डेजिग्नेटेड पार्टनर्स किया। दे ऑब्टेन्ड डिजिटल सिग्नेचर एंड डील, दे सिलेक्टेड द नेम एंड सेंट इट टू रजिस्ट्रार, they got the approval from registrar. Now what they have done, they have prepared LLP agreement, they have applied for registration of firm ABC Foods Limited. So this is about the example which is there. LLP agreement, LLP agreement के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है और LLP का मेन डॉक्यूमेंट है, इसी पे आधारित पूरा जो है वो एलएलपी चलता है। ये पार्टनर्स के बीच का एग्रीमेंट है, पार्टनर्स के आपस के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस का है। सिमिलरली ये एलएलपी के साथ पार्टनर्स का क्या रिश्ता है, क्या किस तरह की टर्म्स रहेगी, वो भी है। इट प्रोवाइड्स क्लैरिटी ऑन एज टू डिसीजन मेकिंग, एडिंग अ न्यू पार्टनर और रिमूवल ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, इसकी भी ये जानकारी देता है। And it should be filed with the ROC in Form 3 within 30 days from the date of incorporation of LLP। ये ध्यान रखना है हमें। LLP एग्रीमेंट के बारे में ये ध्यान रखना है। LLP एग्रीमेंट क्या है? LLP एग्रीमेंट इज द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स एंड between the partners as well as between the partners and the LLP in relation to what it refers to. It refers to the rights and obligations of the parties to the LLP। ये important है। इसके बारे में हम क्लॉजेस के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए डेफिनेशन में कुछ जो कंसेप्ट्स है वो क्लियर होती है। देन डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कौन रहेंगे, नेम एलएलपी का क्या रहेगा, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ रहेगा, नेचर ऑफ बिजनेस क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, कंट्रीब्यूशन, शेयर कैपिटल, जो भी शेयर्स, जो भी अपना अपना इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल है, हाउ विल दे ब्रिंग, देन प्रॉफिट एंड लॉस का शेयरिंग रेशो क्या रहेगा, एडमिशन, रिजिग्नेशन के वक्त डिसोल्यूशन, एडमिशन, रिटायरमेंट, रिजिग्नेशन एंड एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर्स के लिए क्या प्रोसीजर रहेगी, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स एंड remuneration, all these things are there. Particulars of bank accounts, maintenance of books of accounts, indemnity clause है, minutes है, meetings है, dispute resolution करना है तो किस तरह से होगा वाइलिंग। ये LLP एग्रीमेंट का मेन पॉइंट है, मतलब ये LLP एग्रीमेंट इज द मेन थिंग इन LLP and these are the clauses which are required in LLP agreement। Therefore LLP एग्रीमेंट का ड्राफ्टिंग काफ़ी अच्छे तरीके से होना चाहिए। स्मॉल LLP न्यू कंसेप्ट है, इसमें अब बिलो 25 लाख का कैपिटल कंट्रीब्यूशन है या टर्नओवर बिलो 40 लाख है तो स्मॉल LLP माना जाएगा। अल्टरेशन टू द एग्रीमेंट, अगर आपने एग्रीमेंट बना दिया, अल्टरेशन करना है, सब हो गया, नाउ LLP इज वर्किंग, फंक्शनिंग, बट यू वांट टू मेक सम चेंजेस इन LLP एग्रीमेंट, तो कैसे करेंगे आप? पासिंग अ रिजोल्यूशन, अप्रूविंग द चेंज इन द एग्रीमेंट, फाइलिंग Form 3 within 30 days of the amendment along with the following documents: original LLP and supplementary altered agreement. Alteration to the LLP agreement is made by passing a resolution, approving the change in the agreement, filing Form 3 within 30 days of the amendment along with the documents, original LLP agreement and supplementary altered agreement। Important provision है ये ध्यान रखने की बात है।
चेंज इन डेजिग्नेटेड पार्टनर है तो कोई भी पार्टनर्स है, या तो टू पार्टनर्स है तो टू पार्टनर्स का चेंज हो सकता है, या एनी ऑफ दी पार्टनर्स हो सकता है। चेंज इन डेजिग्नेटेड पार्टनर है तो ई फॉर्म 3, ई फॉर्म 4 फाइल होंगे अलॉन्ग विथ पार्टनर्स कंसेंट, प्रूफ ऑफ सेसेशन, एफिडेविट ऑफ प्रूफ ऑफ चेंज ऑफ नेम। In case of partner or designated partners in the company, copy of resolution passed by such company वो required है to become partner in the LLP. Copy of authorization letter mentioning the name and address of individual nominated as a partner or individual partner. ये change in designated partners के बारे में है। Change of name of LLP. Change of name of LLP. Again सेम प्रोसीजर। अगर आप देखेंगे तो आपको अवेलेबिलिटी ऑफ नेम का एप्लीकेशन करना है, उससे आपको एक नेम जो है वो आइडेंटिफाई करके अवेलेबिलिटी के हिसाब से यू नीड टू अप्लाई एट MCF पोर्टल। देन आफ्टर फाइनलाइजिंग द नेम फाइल द LLP नेम चेंज एप्लीकेशन। अगर आपको मिल गया तो आपको नेम चेंज एप्लीकेशन फाइल करना है अलॉन्ग विथ कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, कॉपी ऑफ एग्जिस्टिंग LLP एग्रीमेंट and registration certificate. On approval of name, file LLP 5, form LLP 5 giving notice of the change in the name. Submit the form to the registrar within 30 days and then certificate will be issued. This is about the change of name. Recent development LLP में जो 2021 में LLP Amendment Act 2021 के जरिए आया है, in that we have just seen small LLP का introduction हुआ है। the concept has been introduced. It is in line with the concept of small company under the Companies Act 2013. Amendment in certain sections of the act in order to convert offences into civil. Offences civil में convert किया, offences into civil and punishment होगा तो क्या हो गया, punishment from fines to monetary penalties. फाइन से मॉनिटरी में इसको चेंज कर दिया है और ऑफेंसेस को सिविल डिफॉल्ट्स में कन्वर्ट किया है। 34A सेक्शन इंसर्ट किया गया फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। एंड रिगार्डिंग कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, द अमेंडेड सेक्शन 39 empowers the regional director to compound any offence under this act which is punished. These are important amendments which have been made by way of LLP Amendment Act 2021. So with this we have seen the important provisions with regard to LLP Act 2008. Hopefully we have covered it. If anything is left out or anything is missed, we are going to cover in due course.